नमस्कार। सो आज আমি ক্লাস 11 মাইক্रो ইকোনমিক্সৰ কষ্ট চেপ্টাৰৰ ওপৰত আৰু এটা টপিক ডিসকাশন কৰিব গৈ আছো। ওকে, ডিগ্ৰী কাৰণে কনসেপ্টটো জানিব লগা। ক্লিয়াৰ? তেতিয়ালে বলা আমি স্টাৰ্ট কৰো। So আজি topic to is envelope curve. Okay, so actually question to is why long run average cost curve is said to be envelope curve. Clear? So long run or jitu average cost curve dal gor biya rekha dalok envelope curve boli kyo koa hoy tar kone moi ketaman point likhi thoisu. Long run LAC curve is said to be envelope curve. Why? Because it envelops a series of SAC curve. That means what? Long run G2 average cost curve dal khaitu hoise series of SAC curve in short run average cost curve or summation buli kobo para. Means various short run average cost curve bilakor point bilak log logai ami LAC curve dal pao. Clear? Keneka pao moi bujai aisu pisot. Next likhisu LAC curve shows the lowest cost of producing any output when all inputs are variable. That means long run average cost curve dalor each and every point represent minimum cost. Clear? By using all inputs which are variable, because why long run of fixed factor na thake, all factors are variable. Clear? Goal. SAC curve shows the lowest cost of producing any output when some factors remain fixed. That means what? SAC curve or protito point to represent kore lowest cost, but question hoise that all factors are not variable. Some factors are fixed and some are variable, and that variable factor adjust with fixed factor. Clear? Hekane compare kori ami cost to car basic car kom. No SAC curve can go below the LAC curve. That means LAC curve or keteo tolot na jay. Kun SAC curve kyo na jay? Because karon eta ase. Okay, ami bujim ki karon. Due to fixity of some factor inputs, it is not possible to produce a given output in the cheapest possible way. That means what? Short run of some factor fixed thake, means fixed factor, some factor variable. Hey kisuman factor je fixed thake jar karone short run of lowest possible cost of means cheapest cost of production kora to keteba সম্ভৱো নহয়. Clear? Next, but likhisu it is possible in the long run. That means short run jehetu ami cheapest possible with production koribo noaru, kintu ami long run hetu production koribo paru cheapest possible with, because all inputs are what? Variable. Simply kotha eta short run of eta factor fixed, eta variable, or variable factor to logot fixed factor or proper adjustment koribo noaru kane ta cheapest possible with ami production kora to সম্ভৱ নহয়. But in the long run ami jano all factors are variable and factors are properly adjusted with one another, jar kane cheapest possible with ami production to koribo paru in the long run situation. Clear? Aru সদায় মনত ৰাখিবা short run or cost tke long run or cost always কম হয়। হেইকাৰণে থাকে SAC কাপ কেতিয়াও LAC ৰ তলত না থাকে, because SAC যদি LAC ৰ তলত থাকে that means what? short run or cost কম হ'ব, long run or cost বেছি হ'ব, যেটো হ'ব নোৱাৰে। হেইকাৰণে SAC কাপ কেতিয়াও LAC কাৰ্ভৰ তলত না থাকে। ক্লিয়াৰ? তেতিয়া হলে ওভাৰঅল কনসেপ্ট হৈছে এনভেলপস কাৰ্ভ বুলি কলে আমি কাক বুজো? আমি LAC কাৰ্ভডালক বুজো। আৰু এনভেলপ নাথিং বাট সিরিজ অফ SAC কাৰ্ভৰ যেটো আমি কম্বিনেশন পাও ডিফারেন্ট পয়েন্টৰ, আৰু সেই কম্বিনেশন বিলাক লগ লগাই পেলাই বা পয়েন্ট বিলাক লগ লগাই পেলাই আমি যিডাল কাৰ্ভৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰো, दैट कर्व इज सेड टू बी LAC कर्व। मैं बोलना चाहता हूँ मतलब SAC कर्व का ईच एंड एवरी पॉइंट से मतलब पर्टिकुलर पॉइंट मिलेगा जितना SAC कर्व का, सो वो सारा पॉइंट जोड़ के ना एक कर्व निकलता है, दिस इज LAC कर्व। क्लियर? रिमेंबर SAC कर्व नथिंग बट प्लांट कर्व्स। ओके, मतलब इसका मीनिंग ये हुआ, मान लो लॉन्ग रन में, क्लियर, लॉन्ग रन में अगर डिमांड तुम्हारा कोई प्रोडक्शन करे उसका डिमांड ज़्यादा है, तो अगर डिमांड ज़्यादा होगा तो सेल ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ तो तुम प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो तुम बिग प्लांट लोगे। क्लियर? और बिग प्लांट लेके उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे
अगेंस्ट मिनिमम कॉस्ट। क्लियर? अगर लॉन्ग रन में डिमांड कम है तो प्रोडक्शन कम करोगे, तो डेफिनेटली यू चूज स्मॉल प्लांट वेयर कॉस्ट इज मिनिमम। आइदर इट इज लार्ज प्लांट और इट इज अ स्मॉल प्लांट, डेफिनेटली यू चूज दैट अमाउंट ऑफ गुड्स यू आर रेडी टू प्रोड्यूस अगेंस्ट दैट कॉस्ट इज मिनिमम। मतलब छोटा सा प्लांट लो या बड़ा प्लांट लो, दिस इज डिपेंड्स अपॉन डिमांड, बट ऑलवेज इन द लॉन्ग रन व्हाट एवर प्लांट यू चूज, ईच एंड एवरी प्लांट में तुम्हारा कॉस्ट क्या होगा? मिनिमम होगा। इसका एक ही रीज़न है, बिकॉज लॉन्ग रन में प्रोड्यूसर और एंटरप्रेन्योर और इंडस्ट्री और फार्म जो भी बोलो, उसको एडजस्टमेंट करना आता है। किसका? वेरिएबल फैक्टर का विथ फिक्स फैक्टर, मतलब फिक्स्ड भी वेरिएबल हो जाता है, इसलिए वो फैक्टर्स का जो एडजस्टमेंट होता है ना थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, वो प्रॉपर्ली कर सकता है। इसलिए शायद लॉन्ग रन में कॉस्ट मिनिमाइज होता है। आइदर बिग प्लांट और स्मॉल प्लांट, दिस इज डिपेंड्स अपॉन डिमांड। अगर डिमांड हाई होगा तो बिग प्लांट लेगा, लेकिन उसके अगेंस्ट में प्रोडक्शन जितना करेगा उसमें कॉस्ट मिनिमम ही होगा। लेकिन डिमांड अगर मार्केट में कम है तो स्मॉल साइज़ का प्लांट लेगा, लेकिन अगर स्मॉल साइज प्लांट लेगा तो उसके अगेंस्ट में जितना प्रोडक्शन वो करेगा ना, वो भी लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट में ही करेगा। क्लियर? सो इसलिए शायद ये चीज़ आता है, मतलब ईच एंड एवरी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज नथिंग बट व्हाट? प्लांट कर्व। क्लियर? तो अगर उससे अगर लास्ट क्लास में मैंने ड्रॉ किया था वो फिर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये होगा, मतलब लॉन्ग रन का LAC कर्व जो होता है ना, LAC कर्व वो ईच प्लांट कर्व से डिराइव होता है। मतलब डिराइव अगर देखो LAC कर्व, डेफिनेटली वी ड्रॉ SAC कर्व, मतलब समेशन ऑफ SAC कर्व से हम लोग को डिराइव करना आता है क्या? LAC कर्व। मतलब LAC कर्व को ड्रॉ करने के लिए तुमको SAC कर्व का सहारा चाहिए। मतलब ईच SAC कर्व रिप्रेजेंट प्लांट कर्व। क्लियर? कैसे? मैं दिखा रहा हूँ। मान लो दिस इज वन प्लांट, दिस इज SAC1, ओके, दिस इज SAC2, मैंने दो प्लांट लिया। क्लियर? अभी दिस इज SAC3। क्लियर? अभी मान लो अगर तुमको प्रोडक्शन करना है इतना, मतलब इफ़ यू रेडी टू प्रोड्यूस दैट अमाउंट, तो फर्स्ट प्लान में तुम्हारा पर यूनिट कॉस्ट होगा इतना, लेकिन इतना प्रोडक्शन के अगेंस्ट में अगर सेकंड प्लान तुम चूज करोगे तो तुम्हारा पर यूनिट कॉस्ट होगा इतना। क्लियर? लेकिन ये पॉइंट अगर चूज करोगे इतना प्रोडक्शन होगा, तो ये दोनों प्लान में SAC1 SAC2 में सेम खर्चा आएगा। लेकिन अगर ये पॉइंट चूज करो, अगर प्रोडक्शन तुम Q3 तक कर लो ना, तो SAC2 मतलब सेकेंड प्लान में जितना खर्चा होगा थर्ड प्लान में ज़्यादा होगा। तो डेफिनेटली यू प्रेफर सेकेंड प्लान रदर देन थर्ड प्लान। इस जगह में तुम डेफिनेटली प्रेफर करोगे फर्स्ट प्लान ना कि सेकेंड प्लान, क्योंकि सेकेंड प्लान में पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा है। अगर इतना आउटपुट करोगे तो थर्ड प्लान में ज़्यादा है, देखो थर्ड प्लान में ज़्यादा कॉस्ट है लेकिन सेकेंड प्लान में कम है। तो इस हिसाब से तुमको प्लान चूज करना है और जिस प्लान में खर्चा मिनिमम आएगा। क्लियर? मतलब ये जो प्लान के अगेंस्ट में खर्चा मिनिमम हो रहा है ना, ये अलग चीज़ तुम लॉन्ग रन में ही कर सकते हो। क्लियर? मतलब व्हाट प्लान यू चूज फाइनली, ये चीज़ लॉन्ग रन में ही होता है। क्लियर? मतलब लॉन्ग रन में तुम प्रोडक्शन करते वक्त वही देखोगे कौन सा प्लान में खर्चा मिनिमम हो रहा है। जो प्लान में खर्चा मिनिमम होगा वही प्लान तुमको लेना है, और वही प्लान का मिनिमम पॉइंट वाला खर्चा को अगर जोड़ दो तो उससे निकलेगा LAC का। तो अगर देखा जाए कंपेयर टू दिस टू प्लांट SAC1 SAC2, तो फर्स्ट प्लान में खर्चा कम हुआ। अगर इतना प्रोडक्शन देखो तो दोनों प्लान में समान हुआ, लेकिन इतना प्रोडक्शन देखो तो सेकंड प्लान में खर्चा कम आया, थर्ड प्लान में खर्चा ज़्यादा आया। क्लियर? तो इस हिसाब से कंपेयर करके तुमको दिखना है कौन सा प्लान में खर्चा कम है अगेन द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स यू प्रोड्यूस्ड। क्लियर? तो फाइनली तुमको वही प्लान चूज करना है जिस प्लान में चीपेस्ट कॉस्ट होगा अगेंस्ट प्रोडक्शन। क्लियर? इसलिए शायद LAC का ऑलवेज क्या होता है, फ्लैटर होता है।
किससे? एसएससी कर्व से। एसएससी कर्व थोड़ा यू शेप होता है क्योंकि एसएससी कर्व में कॉस्ट मिनिमम होकर फिर ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन एलएसी कर्व का ईच एंड एवरी पॉइंट में खर्चा धीरे धीरे घटता है, धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि तुमका प्लान का जो चूजिंग वाला चीज़ है ना, चॉइस करना वाला जो बात है ना, कौन सा प्लान में प्रोडक्शन करना है, कौन सा प्लान में खर्चा कम होगा, वही चीज़ तुम लॉन्ग रन में कर सकते हो। डेफिनेटली तुम चूज़ करोगे वही प्लान जिस प्लान में खर्चा कम होगा। क्लियर? तो फाइनली खर्चा कम होने वाला बात लॉन्ग रन का एलएसी दिखा रहा है। क्लियर? तो इसलिए शायद लॉन्ग रन कॉस्ट का मतलब एवरेज कॉस्ट का इज फ्लैटर देन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का। क्लियर? तो इस हिसाब से अगर देखो तो लॉन्ग रन का एलएसी का ड्रॉ करने के लिए तुमको इस हिसाब से बनाना है। दिस इज व्हाट एलएसी कर्व, जो मैंने लास्ट क्लास में बनाया था। तो ये एलएसी कर्व का इस पॉइंट में आ गया एसएससी 1, एसएससी 1, इस पॉइंट में आ गया एसएससी 2, एसएससी 2, इस पॉइंट में आ गया एसएससी 3, इस पॉइंट में आ गया एसएससी 4। तो ये जो फर्स्ट प्लान का मिनिमम कॉस्ट का पॉइंट, सेकंड प्लान का मिनिमम कॉस्ट का पॉइंट, थर्ड प्लान का मिनिमम कॉस्ट का पॉइंट, फोर्थ प्लान का मिनिमम कॉस्ट का पॉइंट अगर देखो, वो सारा पॉइंट अगर एक साथ जोड़ दोगे ना तो तुम्हारे हाथ में आ जाएगा व्हाट? एलएसी कर्व। क्लियर? सो वी से LAC कर्व इज सेड टू बी एनवेलप कर्व, मतलब सीरीज ऑफ एसएससी कर्व का पॉइंट जोड़ के हमको मिला लॉन्ग रन एवरेज cost curve. For that reasons, LAC curve is said to be envelopes curves, and each and every SSC curve is said to be plan curve in the long run. Okay, thank you.